of practicing NCLT, practicing at NCLT. So Sharma with us. She'll be joining in any moment, and after that we can start our session. Okay, hello Neha ma'am. Hi, Joy. Okay, so I believe everyone might be audible. If yes, then please write yes so that we can start the session with Neha ma'am, who is joining us from Odisha. It's like we are glad itself that ma'am has taken some time for us for this beautiful session for sharing the experience of practicing at NCLT. So, okay, yes, we have got the confirmation that yes, the audience are able to hear it. Right. So we will be starting with guest speaker Neha ma'am. Um, her full name is Advocate Neha Sharma. She's been joining us from Odisha. Uh, I would like just She's been practicing in lower courts, high court, as well as in NCLT. So it might be great to know that the NCLT has been established a few years past only. Means it is something new for everyone at Odisha, Cuttack, Bhubaneswar. So it's been that how to start their practice, what all problems were faced, and how an advocate can start from a very basic ground level, so to make a very good impact in the future career, as well as many things are there which an advocate can only face. So over to you, ma'am. We would like to just ask you that if you can please overview the topic, it will be great for the viewers for us. before that, thank you so much, Joy. Thank you, Lex Assisto, for having me, for giving me this opportunity to go on a live session. And also to my viewers, I'd like to say hello, everyone. I hope everyone is doing fine. So, Joy, this topic, the reason why we have chose to discuss on this topic of NCLT is like we know this is the most emerging area of legal practice. Uh, the litigation took a drastic change in terms of relating to commercial and company matters. So, after the establishment of NCLT bench and enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code, so this was the most required necessity, you can say, uh, platform which all the young advocates who have just passed out from the law schools or the who are freshly into the profession, they will take it. As we know that this area is in its embryonic stage, so we have the opportunity to start it from the scratch, to learn it from the scratch, and just take the advantage of it. Okay, so it's like as ma'am said that only few years past only the NCLT was formed. So ma'am, can you just tell us that what was the need to start this NCLT? Okay, see, I would like to say first give you a brief history about it. So it was in the year 2002 when the government of India they suggested to form a committee. Accordingly, a committee was formed, Iradi committee, which so they're having so many forums which deals with the single topic of company law. Why not we have a specialized jurisdiction bench with exclusive jurisdiction having all kind of knowledge about the company law and where the matters can be taken up and disposed at the same time. So like you will be knowing there was a company law board, then there was BIFR, Board of Industrial and Financial Reconstruction. There was AAIFR, Appellate Authority of Industrial and Financial Reconstruction. And of course, there was High Court to deal with winding up and reconstruction matters. So at that time, people were facing various problems. Like we know that before the company law board, a CA or a CS or a cost accountant, they can appear and do the matter. But when the same matter was taken to the High Court, we were not allowed. The CACS they were not allowed. So the it was the point where only the advocates came into picture. So this committee suggested कि यार इतना सब होने से बेटर है एक ही फोरम होना चाहिए, एक ही कोर्ट होना चाहिए, ट्रिब्यूनल होना चाहिए जहां पे सारे मैटर्स रिलेटेड टू कंपनी लॉ डील हुए और वहीं पे खत्म हो जाए. So this was the need. और also
अगर मेरे तरफ से देखा जाए तो the benefit which we faced after this enactment and after this establishment, it was like कि जैसे we all know high court were overburdened with lots of huge number of cases. तो जब NCLT आया, it specialized in company law, तो सारे हाई कोर्ट के मैटर्स कंपनी लॉ में ट्रांसफर हो गए. सिमिलरली डिस्पोजल रेट्स काफी एक्सपीडिशियस हो गया, हमें ज्यादा जल्दी खत्म होने लग गया केसेस, क्योंकि जो लॉ है वो कंपनी लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड करता है अपने प्रोविजन में कि विद इन 3 months केसेस डिस्पोज होना चाहिए, और नहीं भी होता है तो एक्स्ट्रा 90 days दिया जाता है. सो दिस काइंड ऑफ जो रूल्स फ्रेम हुए हैं, दिस गेव अस एन अपॉर्चुनिटी, दिस गेव अस एन एडवांटेज, जिसके वजह से एनसीएलटी ने आज इतने कम समय पे इतना अच्छा रेट तय किया है. सो मैम, जब एनसीएलटी लाने की बात हुई यहाँ पे मीन्स थोड़े कुछ साल पहले ही, तो ऑल ऑफ अ सडन एनसीएलटी का आना, जो सारे मैटर्स हाई कोर्ट में जाते थे उन सारे मैटर्स का स्ट्रोक ऑफ होकर उनको डायरेक्शन मिलना कि आप अब एनसीएलटी में जाइए. तो उड़ीसा का जो कल्चर था उस वक्त, वहाँ के जो एडवोकेट्स थे, वहाँ के जो एडवोकेट्स इतने सालों से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे कंपनी मैटर्स में या कोई भी मैटर्स में कंपनी रिलेटेड, तो अब जब उनको एक अलग से डायरेक्शन मिलता था कि आप अब एनसीएलटी में जाइए, तो मैम उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स बीइंग एन एडवोकेट फेस करना पड़ता था उन्हें? इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा कल्चर हिस्ट्री बता देती हूँ हमारे उड़ीसा का. जैसे हमारे उड़ीसा में इट्स लाइक पीपल दे लिव इन द प्रेजेंट, दे बिलीव आज के आज देखते हैं, कल देखेंगे. तो अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट्स आते हैं या कोई भी इंसान आता है who are aggrieved and they want some help from us, so we see if that person is able to pay, we charge them fees, and when we see that the person is not able to pay the fees, then we don't charge. We at that time, this is what I have at least learned from my senior, कि जिन लोगों ने फीस नहीं दिया and we know they are in real need of justice, we provide justice to them as early as possible. तो हम उनके केसेस में बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं, नॉट दैट कि हम दूसरों के में नहीं लगाते हैं, बट हाँ वी टेक इट एज आवर ओन केस. तो ये हमारा कल्चर है उड़ीसा का. और अगर देखा जाए, जब 2016 में 1 जून 2016 में जब ये नोटिफिकेशन आया दैट ऑल द मैटर्स विल बी ट्रांसफरिंग टू द एनसीएलटी बेंच, एट दैट रिलेवेंट टाइम कटक में एनसीएलटी बेंच नहीं था. कटक वाज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ कोलकाता बेंच. सो दिस वाज द पीरियड व्हेन लॉट ऑफ पैनिक वाज क्रिएटेड. क्या हुआ था ना ऐसा कि जब केसेस आने लगे, we didn't knew कि automatically they will be getting transferred or we will have to move it. We have no idea because there was no particular notification regarding this fact. So what we did was we were waiting that जब कुछ matters जाएगा, transfer होगा, we'll be getting any information or something, but that was not happening. और जो ऑनरेबल जजेस हैं जिनके पास कंपनी लॉ के मैटर्स आते थे, दे ट्रांसफर्ड द मैटर टू द कंसर्न्ड एनसीएलटी बेंच विद द लिबर्टी, ग्रांटिंग लिबर्टी टू द क्लाइंट्स. दिस वाज द सिचुएशन आल्सो व्हेन द क्लाइंट्स दे थॉट दैट instead of asking us asking the advocate, concerned advocate who was there in the matter, they directly contacted the outstation advocate at the relevant time जो कोलकाता के थे, so that वहां उनसे मैटर डील करवाया जाए. इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुआ. देन ऑल्सो जब 2019 में लास्ट ईयर ही जब एनसीएलटी का बेंच कटक में आया, सो द प्रोसीजर वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन द हाई कोर्ट. आवर क्लर्क्स they found that the filing procedure is different as compared to the civil matters or criminal matters or matters which we file in the high court. एडवांस कॉपी सर्व होती है एनसीएलटी में पहले, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है. तो दिस एवरीथिंग वाज न्यू टू अस, हमें ये सब नया लग रहा था. बस इसी हिसाब से प्रॉब्लम्स आए, बट स्टिल अब 1 साल हो चुका है. नाउ वी आर अवेयर कि क्या लिया जाता है वहाँ पे, किस तरह से फॉलो किया जाता है. सो वी आर नाउ वेल वर्स्ड विद ऑल दीज फैक्ट्स. ओके. तो मैम, जब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आना शुरू हुई और एडवोकेट्स को ऐसा लगने लगा कि ये थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, तो उस वक्त एडवोकेट्स ने इसको टैकल करने के लिए फिर क्या किया? जैसे जो स्टूडेंट्स थे, जो इंटर्न्स लोग थे, वो सिर्फ कंपनी लॉ का सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ते थे. बेयर एक्ट पढ़ने के बाद दे आर यूज्ड टू लाइक कि अब सिर्फ इंटर्न करना है, इंटर्न में सीखने को मिलेगा. सो व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस एक एडवोकेट को फेस करना पड़ता था
when they were going to appear in front of the NCLT bench? तब कैसे करते थे वो? ऐसा है कि initially the bench was very favorable. They also knew कि this is the new thing which has come at this place, so they were also granting us time, liberty to appear, to adjournments वगैरह easily मिलता था because they knew कि हाँ ये नया है, तो starting initial days में ऐसा मिल रहा था. But then we knew कि कब तक ऐसा टाइम लेंगे. So हम जैसे कि सब ने यही बताया, जो सीनियर्स थे हमारे, या हमने जितने भी आउट स्टेशन एडवोकेट्स को देखा जो अपीयर करते थे एनसीएलटी में मैटर्स के लिए, so we saw that getting thorough with the acts, with the Companies Act, or we can say that Insolvency and Bankruptcy Code, it was the most required thing at that point of time. और नॉट जस्ट एनसीएलटी, कहीं पे भी हम कोई भी केस लें तो हमें उससे पहले उसके स्टैट्यूट को पढ़ लेना चाहिए, वो प्रोविजंस पढ़ लेना चाहिए जो कवर होते हैं अंदर, ताकि इजीली हम कर पाए. तो सिर्फ वही नहीं, हमने फाइलिंग के प्रोसीजर्स देखे, सीखा हमने कि कैसे लिया जाता है मैटर, क्या किया जाता है, एंड देन इजीली धीरे धीरे वी गेट यूज्ड टू इट. ओके, सो मैम इसमें कौन कौन अप्रोच कर सकता है? मींस एनसीएलटी का जो मैटर्स है, जैसे इसमें इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ कोई भी, जैसे हम लोग केस फाइल करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि द मैटर विल बी फाइल्ड इन लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. तो जब एनसीएलटी की बात आती है तो हु कैन अप्रोच टू एनसीएलटी? See, as you are aware of the statute, section 432, this says that any person who is aggrieved and is under the jurisdiction of NCLT bench, effective jurisdiction, then he can approach before the NCLT for redressal, either in person or through an advocate, legal practitioner you can say, या फिर कोई सीए का हेल्प ले सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड देन दे कैन गो ऑन विद द मैटर. तो इन एक सिर्फ एनसीएलटी नहीं, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी फोरम हो वहां पे हर किसी को ये बेनिफिट दिया गया है कि दे कैन अपीयर इन पर्सन, नॉट जस्ट एनसीएलटी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहीं पे भी हम अगर इन पर्सन अपीयर करना चाहें अपने मैटर्स के लिए तो हम कर सकते हैं. तो सेम वेज एनसीएलटी में भी वही फॉलो किया गया. ओके, सो मैम अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला गया कि इज एनसीएलटी बेनिफिशियल फॉर बिजनेस स्टूडेंट एज वेल? हाँ बिल्कुल. जो वो बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिशियल है वो? जी बिल्कुल बेनिफिशियल. अभी आप देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में कहीं ना किसी कंपनी से कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो सर्विस ले रहे होंगे, या तो गुड्स दे रहे होंगे. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ दैट कंपनी बिट्रेज द पर्सन, भले आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है उसके वजह से, या कोई भी रीजन के वजह से आपको हैम्पर होता है, सो यू ऑलवेज हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं. आप वहां जाके अपने जो भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, उसके लिए आप अपना रिलीफ मांग सकते हैं. तो मैम उसमें क्या कोई इंडिविजुअल जा सकता है अगर एनसीएलटी में विदाउट एन एडवोकेट, अगर किसी को जाना हो, जैसे कोई एक बिजनेस पर्सन है, कोई अगर सीईओ है या एमडी है किसी का, तो क्या वो डायरेक्ट अपील हो सकता है एनसीएलटी के सामने? हाँ डायरेक्ट जा सकते हैं. जैसे मैंने कहा ना, 432 सेक्शन बोलता है कि एनी पर्सन कैन अपीयर इन पर्सन, वो खुद जाके अपीयर कर सकते हैं, या वो हेल्प ले सकते हैं किसी सीए का, सीएस का, या लीगल प्रैक्टिशनर का, एंड एट द सेम टाइम दे कैन आल्सो अपीयर इन पर्सन बिफोर द एनसीएलटी बेंच. ओके ओके ओके. सो मैम आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्केट में ये है कि जब से कंपटीशन कमीशन आया है, कंपटीशन सीसीआई जब से आया है, तब से एक तरफ सीसीआई और एक तरफ कंपनी लॉ का जो बोर्ड है, तो बहुत लोग उसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अगर कोई कंपनी डिस्प्यूट हुआ, सो मोर ओवर पीपल से कि हमें कंपटीशन कमीशन जाना चाहिए, या इवन समटाइम्स, अब जैसे हम एग्जांपल अगर ओयो का ले लेते हैं, ओयो ट्रीबो का एक रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें जो मैटर्स आते हैं, तो अगर किसी ने एनसीएलटी में फाइल कर दिया कि ये एक डोमिनेंट पोजीशन यूज कर रहा है, तो फिर उन लोगों को कहाँ डायरेक्ट किया जाएगा? मींस उनको बोलेंगे कि वो खुद डील करेंगे या कहीं और डायरेक्शन मिलेगा उन्हें? ये that's a good question. I like to differentiate. I like to give a brief comparison between competition law and company law. See, if you
If you'll see it briefly, then both the competition law and the company law are two different aspects. They have different area of scope, they have different procedures, different forums, अलग लॉ है दोनों के. कंपटीशन लॉ अगर देखा जाए तो यहाँ वो केसेस आते हैं, वो मैटर्स आते हैं जहाँ पे द कंपनीज विच आर इंसॉल्व दे आर द प्लेयर्स ऑफ द सेम मार्केट, अनलाइक एनसीएलटी और कंपनीज एक्ट जहाँ पे सेम मार्केट के कंपनीज नहीं होते हैं. सेकेंडली, कंपटीशन लॉ में क्या होता है, व्हेन वन कंपनी टेक्स एडवांटेज ऑफ बीइंग एट अ डोमिनेंट पोजीशन, तब जाके जो दूसरी कंपनी है, इट्स बीन अग्रीव्ड एंड दे अप्रोच द सीसीआई जो कमीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है. एंड अगर सपोज मैटर नहीं होता है तो दे गो टू सीएटी, दैट इज कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल. लेकिन एनसीएलटी में देखा जाए हम तो वहां पे वो सारे केसेस आते हैं जहां पे दोनों कंपनीज के बीच में एक रिलेशन होता है, इधर डेटर एंड क्रेडिटर का, और गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होने का, यू कैन से अ ट्रांजैक्शन हुआ होता है, जिसके वजह से व्हेन वन पार्टी और यू कैन से वन कंपनी fails to fulfill its promise, then the other party is in problem, and then they approach NCLT for the redressal. Okay. So मैम, अगर कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है एनसीएलटी में फॉर कि किसी कंपनी ने ये बोला कि दिस अदर कंपनी इज हैविंग अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट और ये एक कंपनी का वायलेशन हो रहा है, तो उस वक्त पर्सन क्या करेगा या एनसीएलटी क्या करेगी? तो सपोज अगर ऐसी कोई पिटीशन आ भी जाती है एनसीएलटी के पास जहां इट क्लियरली एंड इज टेकिंग advantage of being in a dominant position, or you can say they are adopting any anti-competitive policy which is against the competition law, तो ऐसे में competition कमीशन को वो मैटर ट्रांसफर किया जाएगा. एनसीएलटी डायरेक्ट कर देगी वो पार्टी को कि आप या तो डायरेक्ट कंपटीशन कमीशन के पास जाइए और वहां जाके अपना, कि वो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो मैटर ऑटो मोटो ट्रांसफर हो जाते हैं विद ग्रांटिंग देम लिबर्टी टू मूव बिफोर appropriate forum. Okay. So अभी हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं, मींस हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि कंपनी मैटर्स हुआ तो कंपनी मैटर्स एनसीएलटी में चला जाएगा, बट अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि एनसीएलटी में कौन से मैटर्स आते होंगे, तो मैम आपका उसमें क्या ओपिनियन रहेगा? जैसे कि कंपनी में सिर्फ कंपनी मैटर्स नहीं, इंसॉल्वेंसी मैटर्स भी आते हैं. तो मैं दो चार पॉइंट्स बताती हूँ आपको कि ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें कंपनी मैटर्स जा सकता है बोल के. तो सपोज देयर इज अ फ्रॉड व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस विद इन अ कंपनी, या फिर आप इन्वेस्टर है एंड यू हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अ कंपनी एंड यू सी दैट द कंपनी इज नॉट paying attention or is misutilizing your money and investing somewhere else, then you have the option to approach the NCLT. Similarly, suppose you have shares from a company and now you see कि आपको ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जिसको हम बोलते हैं, या मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है कंपनी के अंदर, फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में वी कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू अप्रोच एनसीएलटी फॉर रिड्रेसल. फिर एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, जब हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर ही मिसमैनेजमेंट हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है. ऑपरेशन मतलब when the majority people prejudice the minority people. So ऐसे में also we have the option. Then we have the option, not just fraud and all that, we also have the option जहाँ पे हम बाइंडिंग अप करना चाहते हैं अपनी कंपनी का, या रिकंस्ट्रक्शन, अमलगामेशन, मर्जर्स वगैरह. तो ये सारी चीजें भी एनसीएलटी के अंदर ही कवर होती है. Okay. So अगर कोई पर्सन मैम स्पेसिफिकली एनसीएलटी में मींस कोई आईपीसी के अंदर पर्टिकुलरली जैसे फ्रॉड या कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन एक आईपीसी में कोई फ्रॉड हुआ है या फिर फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, तो अगर उसके अंदर फॉलो आउट करता है तो कैन दैट पर्सन डायरेक्टली गो टू एनसीएलटी? ऐसा है ना, see we always have the option of initiating a criminal proceeding
when the situation like fraud, mismanagement, misappropriation of funds, all these arises. तो ऐसे में हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं. एट द सेम टाइम कंपनी एक्ट बोलता है कि वी आल्सो हैव प्रोविजंस, रिलेवेंट प्रोविजंस, जिसके लेके हम एनसीएलटी में अप्रोच कर सकते हैं. Now, if you'll ask me personally, then I'll say that suppose you are before a criminal court for the injustice that has been taken against you. You go for a criminal proceeding, and इसमें क्या होता है? We have the scope of either conviction, or you can say imposition of fine, or you can say imprisonment for the person who has been found guilty. But at the same time, suppose आप NCLT के पास आते हैं, you move before NCLT and you ask for this problem, solution for this problem. So NCLT में एक ऐसा scope है which will give you for recovery of money. यहाँ पे आपके पैसे recover होने के chances हैं. So what I think is the most important thing you will need. अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो यू विल ऑलवेज वांट कि पैसे वापस आ जाए, ना कि उस इंसान को उसकी गलती का सजा मिले या जो भी. तो व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड वी शुड एटलीस्ट गेट दैट. दिस इज व्हाट एनसीएलटी विल गिव यू. ओके, सो मैम अभी क्वेश्चन आया है कि दैट डू यू थिंक दैट वी नीड मोर नंबर ऑफ एनसीएलटी बेंच इन इंडिया? यस ऑफ कोर्स. किसने पूछा ये क्वेश्चन? अभी मैम इसने पूछा है प्रभु प्रसन्ना. ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. जैसे कि हम जानते हैं कि जब एनसीएलटी फॉर्म होने वाला था तो कहा गया था कि एवरी स्टेट में एक एनसीएलटी का बेंच होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है. जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो 11 बेंच ही थे सिर्फ, पर अभी देखा जाए तो वी हैव 16 बेंचेस. तो अगर हर एक स्टेट में एक एक बेंच होगा एनसीएलटी का, जैसे कि दिल्ली ही अकेला 6 बेंच है दिल्ली में, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल बेंच. तो अगर हर एक स्टेट में एक एक बेंच होता है तो इट विल ऑलवेज हेल्प अस फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, जो कि बहुत ही अच्छा चीज होगा हमारे लिए. ओके, सो मैम मेघा शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है दैट इज द हाई कोर्ट कैन ओवररूल द जजमेंट ऑफ एनसीएलटी? मींस अगर एनसीएलटी के पास कोई जजमेंट गया है तो क्या उसको ओवररूल कर सकती है हाई कोर्ट? नहीं. जैसे कि आप जानेंगे कि सेक्शन 430 बोलता है कि सिविल कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन. अगर ऐसा कोई भी मैटर्स आता है which is entirely under the jurisdiction of NCLT, and if such matters are taken before the civil court, then civil court will not interfere in that matter. It will automatically direct you to approach before the NCLT bench. They can't overrule, क्योंकि NCLT का एक specific jurisdiction है, एक exclusive jurisdiction है, जिसमें जितने भी matters है related to कंपनी लॉ वो हाई कोर्ट में नहीं आके डायरेक्ट एनसीएलटी में ही आएंगे. ओके, सो मैम अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने एनसीएलटी में अप्रोच किया, अब एनसीएलटी में अप्रोच करने के बाद दे आर एग्री, तो वो अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, अगर आप एनसीएलटी में अप्रोच किए हैं ना, यू आर अग्रीड विद द डिसीजन, देन यू हैव द ऑप्शन टू गो बिफोर एनसीएलटी, जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल है. और अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट से या ऑर्डर से आप अग्रीव्ड हैं तो आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का. सुप्रीम कोर्ट जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता. तो वहां हम पॉइंट ऑफ लॉ को डिस्कस करके और उसके बेसिस में हम हमेशा अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट हाई कोर्ट नहीं जा सकते. हम डायरेक्ट एनसीएलटी में जाएंगे. ओके, फाइन. तो अभी जैसे एक पर्सन का भी आया, मैं नाम बताता हूँ, गोकुल पारिदा करके. The person has said the same question with one point कि इसमें रिव्यू का प्रोविजन होता है क्या मैम? अगर एनसीएलटी में गया है तो क्या हम उसमें रिव्यू कर सकते हैं? जैसे देखिए, रिव्यू का ऑप्शन हमें मिलता है, बट वो देखा ज्यादा है कि किस रीजन से. जैसे कि अगर हम स्टैट्यूट देखें तो वहां पे रिव्यू को लेके कुछ नहीं कहा गया. वंस अ जजमेंट हैज बीन पास्ड बाय एनसीएलटी बेंच, देन वी डायरेक्टली हैव टू अप्रोच टू एनसीएलटी. हमें रिव्यू का ऑप्शन नहीं मिलता, और एनसीएलटी का जजमेंट फिर जो होगा वहां हमें अपने आप से पता चल जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एनसीएलटी? शुभानी ने पूछा है, तो शायद मैं करेक्ट करना चाहूंगा, शायद प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एनसीएलटी नहीं होगा, शायद अपीयरिंग बिफोर एनसीएलटी हम समझ सकते हैं.
आई थिंक मैम अगर आप बताएं तो इस पे शायद। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन ही वैसा है कि ज्वाइनिंग एनसीएलटी, या तो अगर हम एडवोकेट हैं तो वी कैन ज्वाइन, देयर इज नथिंग कि हमें प्रोसीजर चाहिए या कुछ चाहिए. इफ वी हैव केस वी कैन गो, इफ वी डोंट हैव अ केस वी कैन जस्ट गो एंड हैव अ वॉच ऑन टू अदर एडवोकेट्स हु आर वाचिंग, हु आर डूइंग द मैटर्स. और ज्वाइनिंग एनसीएलटी का और इससे ज्यादा अगर वो एक्सप्लेन कर पाए कि उनका क्वेश्चन क्या है तो शायद हम बता पाएंगे उसके बाद उनको. प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एनसीएलटी का मतलब शायद ये हो सकता है कि इनका जो बोर्ड होता है, जैसे जो डिवीजन बेंच हम लोग कहते हैं, जिसके लिए क्वालिफाइड मेंबर्स जरूरत होते हैं, तो शायद शुभानी मैम का यही क्वेश्चन कि अगर हमें उस पोजीशन पे आके उसको ज्वाइन करना हो तो फिर उसको कैसे डील करेंगे. आई थिंक शुभानी वी विल बी डीलिंग इन 1 or 2 minutes रिगार्डिंग दिस कि उस उनका बोर्ड पे कौन होता है, उनके क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो श्योरली वी विल आंसर दैट प्रॉपर्ली. सो नेक्स्ट मैम ये है कि जो इसमें मेंबर्स आते हैं, जैसे देयर इज लाइक अ वेरी confusing question for every law student that even when we have studied company law, तो सबको ये लगता था कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे जिसमें चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और ये रहते थे, वो सारे लोग अलग अलग जगह पे एक साथ बैठते थे, मींस 3 in a row. तो कैन यू प्लीज जस्टिफाई कि वो उनका बोर्ड कैसा होता था, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती थी? इट विल बी ग्रेट फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो. ऐसा है कि एनसीएलटी में प्रेसिडेंट होते हैं, एंड प्रेसिडेंट जो है वो प्रिंसिपल बेंच में बैठते हैं. बाकी सारे जितने भी बेंचेस हैं वहाँ पे एक जुडिशियल मेंबर एंड 1 मेंबर फ्रॉम द टेक्निकल ग्रुप. सिमिलरली अगर एनसीएलटी में देखा जाए तो वहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं जो कि मेन चेयरपर्सन होते हैं वहाँ पे. फिलहाल अभी जो चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन है एनसीएलटी के, वो है ऑनरेबल जस्टिस श्री बंसीलाल भट्ट. और जो प्रेसिडेंट है एनसीएलटी के वो है ऑनरेबल जस्टिस एमएम कुमार, वो रिटायर्ड जस्टिस है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. तो ये तो बात हुई चेयरपर्सन की और चेयरमैन की. अभी ऐसा है कि एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक टेक्निकल मेंबर होगा. कौन हो सकता है जुडिशियल मेंबर? दिस इज द क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज व्हाट शी इज आस्किंग. तो जुडिशियल मेंबर कैन बी अ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट जज who has an experience of 5 years, or he can also be an advocate who has an experience of 10 years. तो वो सारे लोग आ सकते हैं जुडिशियल मेंबर के रैंक में. और सिमिलरली अगर टेक्निकल मेंबर को हम देखें कि कौन हो सकते हैं हमारे टेक्निकल मेंबर, तो टेक्निकल मेंबर के लिए हम बोल सकते हैं कि he should be a member of ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, या फिर इंडियन लीगल सर्विस जिसको हम ILS बोलते हैं, तो वो उसके मेंबर होने चाहिए. या फिर उनको स्पेसिफाइड नॉलेज होगा, स्पेशल नॉलेज एबिलिटी होगी इस फील्ड में, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ लॉ फ्रॉम द लास्ट 15 years सॉरी. और या फिर वो अगर लेबर कोर्ट के मिनिमम 5 years हो गया एंड ही इज अ मेंबर ऑफ अ लेबर कोर्ट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, देन ही कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ टेक्निकल मेंबर इन द NCLT bench. Okay. So I think शुभानी आपको आंसर मिल गया होगा इस चीज का, that if you want to be a part of this NCLT in future, then definitely you have to be an experienced person, either as a high court judge, or even you should have an experience of more than 7 to 10 years. So definitely we can expect you to be the one of the members of NCLT in the coming benches. I wish for the same. So any students who are having any type of questions related to this NCLT can definitely, okay, so we are having one, that is Gokul Vaidya has asked one question, that how many NCLT appellate tribunal are there in India? If someone, just a moment, if someone is aggrieved by judgment passed by NCLT Cuttack, where should he approach for appeal? ऐसा है कि एनसीएलटी का एक ही बेंच है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है. उसके 2-3 बेंचेस नहीं है, सिर्फ एक ही बेंच है. एंड इफ यू आर अग्रीव्ड फ्रॉम द बेंच एनसीएलटी कटक, देन यू हैव द ऑप्शन टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी. और अगर आप एनसीएलटी के पास भी अग्रीव्ड होते हैं जजमेंट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. एक ही बेंच है एनसीएलटी का. So next question is that what is the necessity of a technical member if there's
already a judicial member with experience of law? टेक्निकल मेंबर का नेसेसिटी इसलिए है कहा जाएगा बिकॉज कंपनी लॉ इज अ न्यू फील्ड. दिस इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट द एडवोकेट्स, इट इज अबाउट द CA/CS, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज बोलते हैं. तो ये जो टेक्निकल मेंबर है ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है, हम बोल सकते हैं इनको, जो कि CA या CS या CA कॉस्ट अकाउंटेंट CMA इस फील्ड से आते हैं. सो दे हैव ग्रेट नॉलेज इन दिस फील्ड. कंपनी लॉ से डील किए हुए हैं, वो कंपनी से डील किए हुए हैं, उनको आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप ये सब किए हुए हैं, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं बैलेंस शीट वगैरह जो देखना एंड ऑल दैट एज कम्पेयर टू दोज ऑफ एडवोकेट्स. तो इसीलिए देखा जाए तो जो लॉ फील्ड से हैं वो जुडिशियल मेंबर बनते हैं, जो एग्जीक्यूटिव फील्ड से हैं वो टेक्निकल मेंबर बनते हैं. Okay, fine. So one of the question is asked from Dhriti that ma'am, does companies want to indulge more in court proceeding or they want to go for settlement? Settlement in देखिए अभी as you all know that if you'll take the example of yourself, आप भी नहीं चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन में इंडल्ज हो. तो वैसे ही कंपनी के जो क्रेडिट स्कोर है वो कम जाते हैं अगर इट इज बीन ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट्स ऑफ लॉ. तो ऐसा बोला जाता है कि जितना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है वो कंपनीज कर लेती है. इसलिए हम देखते हैं कि जितने मैक्सिमम केसेस आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, IBC का, उसमें मैक्सिमम जो कंपनीज है वो बिफोर गोइंग इनटू द प्रोसीजर वो पहले ही सेटलमेंट कर लेती है. ओके, फाइन. सो मैम, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो NCLT के जो मैटर्स होते हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग से ज्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं, कम पैसा उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता है, प्राइवेसी रहती है एंड ज्यादा पब्लिक आउटरीच में नहीं जाता, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे देखा जाए तो वो सारे प्रोसीजर्स नहीं होते हैं हमारे जितना हम अगर हाई कोर्ट या कोई भी सिविल कोर्ट में देखते हैं. सिविल कोर्ट में क्योंकि इतने सारे मैटर्स होते हैं तो वो ड्रैग होता है, हमारे डिले होते हैं जस्टिस के लिए. एक बार मैटर पड़ा तो वो अब नेक्स्ट मंथ या प्रोबेबली 2-3 वीक के बाद पड़ता है. लेकिन सिमिलरली अगर वो मैटर NCLT के पास पड़ता है किसी कंपनी को लेकर, तो कंपनी जो कोर्ट है, जो NCLT बेंच है हमारे, वो या तो 2 वीक्स का टाइम देते हैं या फिर नेक्स्ट वीक ही बुला लेते हैं. दे डजंट ग्रांट टाइम मोर देन 2 वीक्स because they say we have specific instruction to finish this matter as early as possible. And जबकि हम देखें कि स्टैट्यूट खुद ही प्रोवाइड करता है, तो obviously they also have this time bound situation where they have to finish. क्योंकि अगर 3 months पार होता है तो for the next 90 days they will have to specify reasons for such delay. तो इसीलिए वो भी खुद नहीं जाना चाहेंगे ऐसे केसेस में, इसलिए वो जल्दी खत्म करने का कोशिश करते हैं. Okay. So another question is from Mr. Swastik Swaroop. He's asking that, ma'am, how will you suggest that we should prepare before appearing in NCLT, or is there any difference from appearing in High Court or lower court? Means, is there any difference when we go to appear before the NCLT rather than appearing in High Court? See, it's all the same when you are appearing before any court. सारे branches एक ही हैं and all are dealing with the same laws, some other laws, but dealing with the same matter. So I would say कि if you are appearing before the bench for any matter and you are going to argue, then it is always advisable to get thorough with the act, Companies Act, or if you have a matter which involves the insolvency and bankruptcy code, तो उसे पढ़िए. Try to find out as much as possible the judgments relating to your case, or read on all the judgments which are relating to your case. That will help you a better picture. Okay. So next question is from Mr. Keshav Kumar Bharadwaj. He's asking that, ma'am, how much an advocate can earn in NCLT? See, it totally depends on how great lawyer you are. If you are very hardworking and you take cases, so you can earn a good money. I will not be specifying exact amounts, but I will be saying that कि आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने कमाएंगे, ना सिर्फ NCLT में बल्कि हाई कोर्ट्स या कोई भी कोर्ट में. Just you should know the law, you should know how to work on that law.
तो बस उतना ही Okay. काम है. अर्निंग मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, अर्निंग फेम इज इम्पोर्टेंट. सो अभी तो आपको पहले काम करना चाहिए इसके लिए. Correct, correct. So another question comes like how to approach. This has been asked from Dhriti. She's asking that how to approach for client counseling. Means if the matter can like be ended with either going to the court or even to the NCLTs. So how to approach the clients for the counseling? See, when the matter comes before NCLT, the court will always give you an opportunity to settle the matter outside the courts. So, the court will ask you, is there any chance that a matter can be settled out of court settlement, which we say? And basing on that, the court will also grant you 1 week, 2 week, or we can say 1 month time for settlements. And after settlement, for the settlement, both the parties need to be present at the same time along with their advocates. And after the discussion, suppose if you don't enter into settlement, तो वो normal जैसे court proceedings चलते हैं वो वैसे चलेंगे. और अगर settlement हो जाता है तो हम next matter में जब पढ़ता है, they will just file a memo saying, or we can say we can file an affidavit, and we can say the matter has been settled outside the court, so we are withdrawing the petition. खत्म. Okay. Ma'am, another question that is like very important for many students, that is, can a criminal proceeding, means as we have said that there is a matter of IPC, so can a criminal proceeding and a proceeding before NCLT can be run parallelly? This is a very good question. Yes, it can be run parallelly. ऐसा है कि suppose there are too many harms out of one act. So agar there is a fraud which has taken place inside the company, so at that point of time you can file a criminal proceeding against that person who has created fraud. And at the same time, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी को बंद हो जाना चाहिए and इस fraud के वजह से we are not able to run the business and we want to go for winding up or for reconstruction or anything, then you can approach before the NCLT bench for appropriate direction. Okay. Gokul is asking that is there any fixed court fees or which varies from different reliefs? Means if the matter is of like 10 crore or 100 crore or anything, so does the court fees differ accordingly? No, it's like कि जब हम petition file करते हैं, suppose we are filing a petition under Form 5 Insolvency and Bankruptcy Code का, so we have to put a stamp of 15 rupees, जिसको हम बोलते हैं 15 रुपए के स्टैंप लगते हैं इसमें. At the same time सारे वकालतनामा जो हम फाइल करते हैं उसमें 33 rupees के स्टैंप लगते हैं. And there are also different procedure as compared to other courts, lower courts or high courts, जिसमें कि सारे pages में affidavit होने चाहिए, सारे पेजेस में क्लाइंट के सिग्नेचर होने चाहिए, सारे पेजेस में एडवोकेट के सिग्नेचर होने चाहिए. So these all are different ways which the NCLT prefers as compared to filing under lower court or high court. Okay. So, ma'am, lastly, Shubhani is actually asking that, ma'am, please share your experience and what new things you have learned after this NCLT came into existence and Cuttack, and you have to face. So, what can be the advice from your side? Everything related to it. Thank you so much, Shubhani. But it's just 1 year of my practicing at NCLT because NCLT अभी नया ही खुला है कटक में. I'm yet to experience things, but I would say कि इस 1 year में I've learned a lot about filing procedures, about thoroughness with the act in which you are dealing with. मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, मैंने ये सब भी देखा है कि कैसे एक मैटर को हम प्रिपेयर करते हैं. नो मैटर यू नो एवरीथिंग अबाउट द केस, नो मैटर यू नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट द केस, बट स्टिल इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जाने से पहले आप जितने बार उस केस को पढ़े, so that you can find out new points, new things which you might not be knowing before. तो ये मेरे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने सीखा है अपने सीनियर से ये चीज़. और नए चीज जो है वो सीखने का एनसीएलटी में, तो देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच आर येट टू बी लर्न. तो बस मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ. ओके. सो मैम, अगर आपको अभी स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना हो कि आफ्टर 5 years, क्योंकि हम लोग बेसिकली कॉलेज लाइफ में सिर्फ हम लोग ने लॉस पढ़े, कंपनी लॉ पढ़ा, आईबीसी पढ़ा या डिफरेंट फ्रॉड पढ़ा, मींस उसमें जितने भी
criminal offenses है वो सब पढ़ा, but maximum number of students are like they are unaware of the practicalities in the court, and NCLT कॉम्पैट ये सब बहुत ही ज्यादा नया है सबके लिए, नॉट इवन फॉर द स्टूडेंट्स बट इवन फॉर द एडवोकेट्स जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अचानक से कैसा ट्रिब्यूनल आना. सो इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू मेक देयर करियर इन दिस कंपनी लॉ फील्ड और इवन रिलेटेड टू कंपटीशन कमीशन, तो उसके लिए मैम आपका क्या गाइडेंस होगा? See, पहला तो I would like to say that we should experience all the branches of law. No matter it is a high court or it is a lower court or it is a tribunal dealing with suppose DRT matters or water supply matter, water service matters or NCLT. हमें हर एक फील्ड में अपीयर करना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए as far as possible. And जो जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं या जो भी यंग पास आउट्स हैं लॉ स्कूल के, आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज अ वे डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. सो अगर आप थॉरो भी हैं जो एक्ट से या कोड से अब बोला जाए तो, no matter how much you know about the act, but the practicality is always different. So this is what you are going to learn in your practice career. जितना प्रैक्टिकल गेन करना चाहेंगे आप नॉलेज, वो उतना फायदे है आपके लिए. सो बिफोर एंटरिंग इनटू दिस प्रोफेशन, आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड फर्स्ट इंटर्न before any senior, or you should first go and observe how are the proceedings being done, how are the matters being taken up, what are the procedures which we follow for filing, straight from the filing and to till the disposal of the cases. तो जितना ज्यादा नॉलेज हम जाने वो उतना बेटर है. एंड ऑफ कोर्स दोनों जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट और इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये दोनों को जितना ज्यादा अच्छे से आप जानेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है. आई होप सब जितने लोगों ने हम लोग को देखा उन लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हुआ ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है व्हेन इट कम्स टू एनी पर्टिकुलर लॉ, स्पेसिफिकली जब उस पर कुछ स्टार्ट करना हो हमें, इवन स्पेसिफिकली मींस मोर स्पेसिफिकली आफ्टर द 5 year करियर, उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से डायरेक्शन मिलेगा, हाउ टू गो टू द कोर्ट, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, प्रोविजंस याद करने से रिलेटेड, मेनी थिंग्स आर देयर. So I think this particular session, which talks about an inside story, which talks about many experiences, many things that ma'am has shared with you all, so that you can make a good step towards your career related to the same. I hope this would be a fruitful one. So thank you so much, ma'am, for this beautiful session today evening. Thank you so much, Joy. I will also like to say कि if you guys have any doubt, all the viewers and everyone who is watching this video, if you guys have any doubt or any help or any guidance which you want relating to Companies Act or Companies Law, then you can always reach out to me through Lex Assisto or through Joy, or they can just contact me through my mail ID, and I'm there to help you out, guys. And thank you so